ठीक है. First tell me you all are from 12th or you have already done engineering first year. Your first year completed. Okay. You also. You have just completed 12th. First year completed. Okay. ठीक है. Uh, Online student, you want to tell your good name? ठीक है. So we'll start with our subject, that is fundamentals of programming languages. Now, those who have completed first year, I hope you have some programming knowledge. Yes or no? No. You're from computers. Computers. Computers only. Okay. Do you have some basic knowledge? That is Python programming, I hope. No worries. We will again start it from the beginning. Clear? And as he has done 12, so some basic IT knowledge. Or you didn't had IT. Okay. But you had one subject, IT subject. Okay. But you appeared for IT paper. ठीक है. No problem. ठीक है. We'll start from very basic. Don't worry for that. But in this subject, we are going to cover language C. C programming we are going to cover, not Python again. Because C is needed for data structures. And as now you all are going for second year, right or no? You people are going for second year. So in second year, you will have one subject. आपको एक subject होगा data structures and algorithm. तो उसके लिए prerequisite है C programming. C है, C++ है. तो आपको वो यूज हो जाएगा ये सब्जेक्ट. एंड एज ही इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड ही इज नाउ ही इज जस्ट 12th पास, तो ही विल बी गोइंग फॉर एफई. तो यू विल हैव न्यू कोर्स फ्रॉम दिस ईयर. एफई को अभी इस साल से नया कोर्स है. एंड एफई को अभी दो सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर्स के. फर्स्ट सेम में भी है एंड सेकेंड. तो फर्स्ट सेम में आपको सी प्रोग्रामिंग है एंड सेकेंड सेम में पाइथन है. ओल्ड स्टूडेंट्स लाइक इन लोगों ने सिर्फ पाइथन ही किया था. तो अभी ये बेनिफिट है कि जो अभी इस साल फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करेंगे उनको 2 सेमेस्टर कंप्यूटर्स है. फर्स्ट सेम इज सी प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड सेम इज पाइथन. लाइक गेटिंग ओके. तो बोथ विल हैव बेनिफिट. तुम लोगों को ये सीख के डेटा स्ट्रक्चर्स का फायदा होने वाला है एंड उसका तो फर्स्ट सेम क्लियर हो जाएगा. लाइक ठीक है. एनीवेज, तो द सब्जेक्ट नेम इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एंड इसमें हम लोग लेने वाले हैं दैट इज सी प्रोग्रामिंग. एंड इफ योर कंसेप्ट्स ऑफ सी आर क्लियर, यू कैन वेरी वेल डू इट इन सी प्लस प्लस, जावा. ये सीखने के लिए काफी आसान हो जाएगा अगर आपका सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स एकदम परफेक्ट हो जाता है. लाइक ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये सब बताने के पहले मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ना. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहेगा. लाइक क्लियर. बिकॉज सम पीपल हैव दैट थिंक ये जो सिखा रहे हैं हु इज ही दैट. क्लियर. तो शॉर्ट में जस्ट बता देता. आई विल नॉट गो इनटू टू डिटेल. लाइक तो माय नेम इज अजीत मोरे. आई एम फ्रॉम अकुर्डी ओनली. आई स्टे इन अकुर्डी प्राधिकरण ओनली. By qualification, I am bachelor's in computers only, BE computers. I passed in 1998. Getting more than your age, I guess, right or no? So more than 25 years I am into software training. Software training में ही more than 25 years I am there. I do freelance projects also for many companies also have done for final year students. Then I'm mostly into teaching engineering students, BCS, BCA, even for some PG courses like MCA, MCS and all. I go to different colleges for value addition and all. Then I have published some books as well for data structures, Java and all. तो थोड़े books भी मैंने publish किए हुए थे. And value addition के लिए मैं काफ़ी colleges में जाता हूँ. Like getting, I do some freelance projects also. And as a hobby, I teach Vedic maths. As a hobby, not for revenue, but I love Vedic maths. So I teach as a hobby to kids also. For you also, if possible, I'll keep telling you some methodologies. Okay. So in short, I just told you about myself. If you want, you can quickly go through it. My main
thing is about programming languages. My keen thing is programming languages, and I have published one paper also on evolution of languages. How languages means not natural languages. Huh? Natural language means English, Hindi, Marathi, German, Sanskrit, जो humans बोलते हैं. So not on that. I have done one paper presentation on evolution of programming languages. कि कैसे 1950 से पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया 1950 जस्ट इमेजिन कि तब कैसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया एंड अब तक कैसे इवोल्यूशन हुआ है फिर लैंग्वेजेस का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है कैसे अलग अलग कैटेगरी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इंपरेटिव फिर इंपरेटिव में भी बहुत सारे और क्लासिफिकेशंस है कैसे लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए हैं उसके ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया हुआ है मैंने तो शॉर्ट में मुझे बताना है कि आई एम मोर कीन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट अलोंग विद दैट कुछ और सब्जेक्ट्स भी सीखा है मैंने कुछ मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक थियरी ऑफ कंप्यूटेशन फॉर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है तो दोज सब्जेक्ट्स ऑल्सो आई टीच डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने मेरी एक खुद की टॉय ओएस भी बनाई हुई है getting I've made my own operating system using C language again थोड़ी असेंबली का यूज किया है एंड थोड़ा C एंड ऐसा एक टॉय ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है मैंने क्लियर तो फॉर दैट आल्सो अगेन C कितना इंपॉर्टेंट है वो पता चलेगा तुम्हें ठीक है तो एनीवेज इवन आई वाज देयर इन द सिलेबस डिजाइन ऑफ BCA कोर्स आल्सो लाइक ठीक है Now we will move on. I hope the short information about myself you have got, like, correct? Then what all things we are going to cover in this course, that we will see. ठीक है? तो पूरा course 5 यूनिट में divided है. I have just taken this course of first year engineering. But again जो second year है, anyways syllabus कुछ matter नहीं करता है. Matter is content, what you are going to learn. आप क्या सीखने वाला है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में कैसे फायदा होने वाला है वो देखो इसको फायदा होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट उसके सिलेबस के हिसाब से ही मैच होने वाला है ठीक है तो द होल कोर्स इज डिजाइंड इनटू 5 यूनिट्स अभी जो ओल्ड वाले हैं उनको 6 यूनिट्स का आदत है इनको अभी 5 यूनिट का पैटर्न आ गया गेटिंग दोस नाउ यू ऑल पीपल हैव हैबिट ऑफ एवरी सब्जेक्ट 6 यूनिट तो इनको अभी सब सब्जेक्ट में 5 यूनिट का पैटर्न आ गया लाइक गेटिंग तो फर्स्ट यूनिट इज इन विच वी विल बी सीइंग प्रॉब्लम डिजाइन के टूल्स है लाइक फ्लो चार्ट्स क्या होता है एल्गोरिथम्स क्या है उसके थोड़े एग्जांपल्स हम देखेंगे डोंट वरी व्हाट इज एल्गोरिथम एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिर थोड़े एल्गोरिथम्स हम सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट्स क्या है फ्लो चार्ट के थोड़े एग्जांपल्स लेंगे लाइक गेटिंग देन वी विल गो टू सी लैंग्वेज तो फिर सी की शॉर्ट में हिस्ट्री पढ़ेंगे सी के फीचर्स देखेंगे एंड फिर एलिमेंट्री चीज है मैंने फर्स्ट सी प्रोग्राम पूरा एक सी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे गेटिंग यू विल रियलाइज इट कि हाउ अ फर्स्ट सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड तो फर्स्ट सी प्रोग्राम हम देखेंगे फिर कुछ एलिमेंट्री चीजें लाइक टोकन्स है आइडेंटिफायर्स है कीवर्ड्स है ये सब चीजें फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाएगा getting then we will be moving to second chapter second unit इसमें हमें देखना है ऑपरेटर्स सी ने जितने भी ऑपरेटर्स प्रोवाइड किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन का थोड़ा बहुत याद आता रहेगा लाइक इन पाइथन ऑल्सो यू माइट हैव स्टडीड ऑपरेटर्स तो ऑपरेटर्स क्या है कितने अलग अलग ऑपरेटर्स अराउंड 8 कैटेगरीज के ऑपरेटर्स सी ने दिए हैं अरिथमेटिक रिलेशनल है लॉजिकल है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्लियर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है कंडीशनल ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर्स है ये सारे ऑपरेटर्स इन डिटेल करेंगे एंड इनके ऊपर काफी सारे ट्रेस आउटपुट भी करेंगे क्योंकि मेरा एक इंटेंशन है कि आप लोग सिर्फ ये सीखा एंड हो गया ऐसा नहीं है मेरा इंटेंशन है कि 4th ईयर में जब कैंपस आना शुरू होता है कंपनीज आने लगता है तो उनके टेक्निकल राउंड में आपको बहुत आसान होना चाहिए एंड दैट टाइम यू शुड थैंक मी कि ये सर ने हमारा फंडामेंटल्स इतना अच्छा किया था कि हम कोई भी कंपनीज का टेक्निकल राउंड क्रैक कर पाता है एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस मेरे इतने पास्ट के स्टूडेंट है ना जस्ट इमेजिन 25 इयर्स के बाद मेरे
काफी सारे स्टूडेंट हैं, काफी सारे कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो सब जन यही बताते हैं कि जो फंडामेंटल्स आपने अच्छा किया था ना, उसके वजह से हम लोग सारे कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर पाए। तो काफी सारे ट्रेस आउटपुट्स भी लेंगे, क्लास में भी लेंगे, आपको भी मैं सेल्फ स्टडी के लिए काफी सारे देते रहूंगा पीडीएफ्स फॉर्म में। इन योर स्पेयर टाइम यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करते समय अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होती है, यू कैन take help from me, don't worry. Clear? But main intention is not only clearing first semester exam or making fundamentals of data structure, वैसा नहीं, ये सोच के मत चलो सेमेस्टर तो क्लियर होने ही वाला, डोंट वरी। आप आए हैं ना, तो आपका सेमेस्टर में क्लियर करवा के दूंगा अच्छे मार्क्स से, उसका चिंता नहीं करना है। ये चिंता करो कि हम लोग अच्छे कैंपस में प्लेस हो जाए। फोर्थ ईयर के बाद जॉब नहीं ढूंढना है, फोर्थ ईयर के अंदर ही आपका प्लेसमेंट पक्का होना चाहिए, ये प्रिपरेशन होना चाहिए, लाइक गेटिंग। तो दैट इज माय इंटेंशन। फिर हमें थर्ड चैप्टर में देखना है कंट्रोल फ्लो। ये हार्ट ऑफ कोडिंग है, मीनिंग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, क्लियर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। गेटिंग? मीनिंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिर्फ लाइन से स्टेटमेंट लिखकर नहीं चलता है, कभी कभी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कंडीशन चेकिंग करना पड़ता है कि अगर ये ट्रू है तो मैं ये करूंगा, नहीं तो ये करूंगा। करेंगे? जो रियल लाइफ में भी होता है ना, रियल लाइफ में सब कुछ पहले ही तय है क्या, कि सुबह उठने के बाद शाम तक ये फिक्स है और मैं इसी तरह चलने वाला हूं, ऐसा होता नहीं है ना। कितनी बार आपका काम दिन का कंडीशनल पे बदलता है ना, कि अगर रेनिंग है तो आई विल नॉट गो टू क्लास, if it is not raining then I'll go to class, whatever. Today is holiday so I'll sleep for some more time, if it is not holiday then I have to do some other work. तो जैसे रियल लाइफ में भी काफी चीजें हमें कंडीशन के बेसिस पे करनी पड़ती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स में भी बहुत जगह पे हमें क्या चेक करना पड़ता है, कंडीशन, एंड उसके बेसिस पे एक्शन लेना है। सेम थिंग यहां पढ़ने वाले हैं हम लोग, इफ एल्स, स्विच केस। एंड रियल लाइफ में भी मुझे बताओ, काफी चीजें हमें रिपीट भी करनी पड़ती है ना, यू हैव टू डू रिपीटेशन ऑल्सो। लाइक कि अभी आपको पता चला है कि आज से मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, एंड हमने बताया कि 30 days द शेड्यूल विल गो ऑन, तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी रिपीटेडली ना। एवरी डे 6 o'clock यू हैव टू कम, अटेंड द सेशन, लर्न अगेन टुमारो, सेम थिंग। दिस यू विल रिपीटेड हाउ मेनी डेज, 30 सेशंस। गेटिंग ऑन? तो रियल लाइफ में भी कुछ चीजें रिपीटेडली होती है, वैसे प्रोग्रामिंग में भी हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटेशन। तो रिपीटेशंस कैसे करता है, लाइक फॉर लूप है, वाइल लूप है, इधर डू वाइल लूप दिया है, तो ये सब चीजें ये चैप्टर में होगा। इसमें भी मैं अबंडेंट ऑफ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूंगा, क्लास में भी हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के तौर पे भी आपको दूंगा, काफी सारे ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस भी, काफी कंपनीज के, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस मैंग कंपनीज, फैंग कंपनीज, जो भी होता है उसके काफी सारे क्वेश्चंस है। क्योंकि वी नॉट ओनली, मैं सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्री प्लेसमेंट के भी क्लासेस लेता हूं। प्री प्लेसमेंट एक्टिविटीज के भी एक अलग से होता है, जहां बच्चे फोर्थ ईयर में जाने के बाद मेरे पास आता है। गेटिंग ऑन? नो? तो इंस्टेड ऑफ दैट कमिंग इन फोर्थ ईयर फॉर दैट, बेटर डू इट नाउ ओनली ना, अभी ही इतना अच्छे से करो कि आपको अलग से प्री प्लेसमेंट के क्लासेस को आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गेटिंग? तो हियर विल बी लर्निंग इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सबके सिंटैक्सेस बताऊंगा, अबंडेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, अबंडेंट ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस लेंगे, काफी सारे आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। क्लियर? तो दैट इज द थर्ड यूनिट। फिर फोर्थ यूनिट में हमें देखना है अरेज, लाइक ओके। फिर अरेज क्या होता है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। गेटिंग? एक वैल्यू नहीं, एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज का ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, अरे। फिर वो अरे कलेक्टिव नाम फॉलो करता है। फिर वो अरेज पे काम कैसे करना है, अरेज डिक्लेयर कैसे करना है, फिर अरे के डायमेंशंस होते हैं, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे। गेटिंग? फिर उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। फिर 2 डायमेंशनल अरेज में हम मैट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे, मैट्राइसेस एंड ऑल, आई होप यू नो इट, है ना, 11th 12th में तो हुआ है। मैट्रिक्स पे हमने काम किया है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए प्रोग्राम्स लिखेंगे, वी विल राइट प्रोग्राम्स फॉर दैट।
तो अरेज के ऊपर इन डिटेल होगा। एंड फिर एक लास्ट यूनिट है दैट इज क्रिएटिंग आवर ओन फंक्शंस। पाइथन में भी किया रहेगा आई होप। पाइथन में भी आप लोगों ने खुद के फंक्शंस कैसे बनाने हैं, डेफ वर्ड यूज करके, फिर वो फंक्शंस को कॉल कैसे करना है। गेटिंग? सेम थिंग यहां भी, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलर कोडिंग। गेटिंग? कि अगर एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उस बड़े प्रॉब्लम का एक ही प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करना है। द बिग प्रॉब्लम इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। फिर ईच स्मॉल प्रॉब्लम के अलग अलग क्या लिखेंगे, फंक्शंस। एंड फिर वो फंक्शंस को कहीं तो मेन प्रोग्राम में क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हाउ टू डू दिस प्रोसीजरल कोडिंग, दैट वी विल बी लर्निंग हियर। तो फंक्शंस में यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करता है, कॉल कैसे करना है, ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। एंड इसी में एक और एक टॉपिक है जो इधर चैप्टर के नाम में नहीं दिया है, स्ट्रक्चर्स। लाइक स्ट्रक्चर, गेटिंग? जैसे अरे है वैसे स्ट्रक्चर होता है। अरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यू, स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर वैल्यू। डिसिमिलर वैल्यूज का ग्रुप को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करना है, फिर स्ट्रक्चर का भी अरे बनता है, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स है। तो ऑल दैट इन यूनिट नंबर 5। गेटिंग? तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस डिवोटेड है। गेटिंग? दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आई होप यू हैव गॉट द ओवरव्यू। ओवरव्यू तो मिल गया है, समझ में? क्लियर? सबसे ज्यादा टाइम आप या टू मच कंसंट्रेशन यू विल गिव ऑन दिस टू, इसके ऊपर दोगे तो आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड फिर ये तो एड ऑन चीजें है ही जो जरूरत ही है। लाइक गेटिंग? डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए जब जाओगे ना सेकेंड ईयर का पेपर, उसमें अरेज तो इतना इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, अरेज। लाइक सॉर्टिंग टेक्निक सीखोगे आप, अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक सीखोगे, बबल सॉर्ट, देन यू हैव क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड ऑल। तो वो सारे सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अरेज। लाइक गेटिंग? फिर आगे जाके आप लोग स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ोगे, तो दैट टाइम ऑल्सो यू विल नीड व्हाट, अरेज। लाइक गेटिंग? तो इन शॉर्ट बताना क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीखोगे तो भी ये जरूरी है। एंड जो फर्स्ट ईयर को है तो उनका तो एक सेमेस्टर ही इसके ऊपर बेस्ड है। लाइक गेटिंग? ओके, तो आई होप all of you are clear with the syllabus outline. So shall we start with the syllabus now? I hope you are super excited. Yes or no? To learn? Sure or no? या नहीं? Sure. Okay, very good. So we will start with our first topic. अपना पहला टॉपिक है that is algorithms हमें पढ़ना है, ठीक है? Then we will be learning flow charts. दोनों पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सी प्रोग्रामिंग। फिर उसमें सी के फीचर्स, सी का हिस्ट्री, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। गेटिंग? एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1 मंथ कोर्स है तो 1 मंथ में ही मैं खत्म करूंगा। थोड़े दिन ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? ज्यादा फीस नहीं लेंगे, डोंट वरी। क्लियर? मीन्स कि 1 मंथ है तो किसी भी हालत में ये 1 मंथ में ही फिनिश करेंगे, नथिंग लाइक दैट। इफ वी नीड सम मोर लेक्चर्स विल टेक इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपका कंसेप्ट अगर ये 1 मंथ में नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वी विल टेक, डोंट वरी, ठीक है? वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज व्हाट इज एल्गोरिथम। आई होप यू आर एबल टू सी इट। दिख रहा है ना? श्योर, विजिबल? ये बराबर ही था शायद इधर पहले ही, ठीक है? तो एल्गोरिथम मींस व्हाट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? नो नीड ऑफ, मैंने प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करेंगे ना हम लोग, वो नोट डाउन करो। थेरोटिकल चीजें नहीं नोट किए तो भी चलेगा, वी विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ्स। मैंने ये जो स्लाइड्स है उसी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करूंगा। हाँ, बट जहां प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, गेटिंग, तो वो लिखते जाओ, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो algorithm, this word has come from the name of one Persian mathematician in around 1700. 1700 means just imagine that time when the computers were also not invented. means जब computers भी invent नहीं हुए थे उस समय concept of क्या था, algorithm. Now when the computers got invented, that time that concept of algorithm we incorporated in computers.
मैंने जैसे कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ तो वो अल्गोरिथम का कंसेप्ट हमने किसमें इनबाइब किया, इनकॉर्पोरेट किया, प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर फील्ड में. बट ये लॉन्ग बैक इन 1700. तो देयर इज वन पर्शियन मैथमेटिशियन, okay, his name is Abu Zafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Clear? Al-Khwarizmi, from that only that name has come. अपभ्रंश होता है ना मराठी में, हम बोलते हैं ना अपभ्रंश मीन्स स्पेल करते समय फिर वो संस्कृत वर्ड थोड़ा मराठी में आ गया तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, द प्रोनाउंसिएशन गोज ऑन चेंजिंग. तो वैसे ही है, वो पर्शियन वर्ड से फिर वो स्पेनिश, स्पेनिश से इंग्लिश, ऐसे होते होते वो वर्ड को प्रोनाउंसिएशन एल्गोरिथम है. फ्रॉम he only was the introducing algebra also, algebra, getting? So one Persian mathematician, Abu Zafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, he introduced the concept of algorithm. And what he says is, if you want to solve any problem, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स लिखो कि पहले ये करेंगे, फिर नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये. उसमें कभी डिसीजन भी लेना पड़े, ये रहेगा तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे. तो सिस्टमेटिकली अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम के क्या लिखे स्टेप्स, एंड वो स्टेप्स अगर बाद में फॉलो किया तो आपको डिजायर्ड प्रॉब्लम का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन. गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? तो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू वांट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज राइट सिस्टमेटिक स्टेप्स and then follow that steps. If you follow that step, you'll get what? The desired result. एकदम सिंपल टर्म में बोलना है तो algorithm is like a recipe which mom follows. Right or no? जो न्यू जनरेशन के मॉम है उनको फॉलो करना पड़ता है. वे हमारे जमाने के तो उनकी रेसिपी सब रिकॉर्डेड था, है ना, उनके दिमाग में वो पूरा रेसिपी रहता है तो वो दिमाग से वो रेसिपी रिकॉल करके सब करते हैं. बट एनीवे रेसिपी फॉलो होती है ना, कुछ बनाना रहेगा तो मॉम एक क्या करती है, एक रेसिपी, एंड फिर वो रेसिपी में पहले सब इनपुट रहता है. इनपुट मींस इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे विद अ मेजरमेंट एंड ऑल, एंड देन मेथड होती है, एंड फिर जब वो मेथड फॉलो करता है तो वो रेसिपी बन के आ जाता है. लाइक गेटिंग? तो जैसे खाना बनाने के लिए रेसिपी होता है, वैसे कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या रहते हैं, एल्गोरिथम. Algorithms don't have any connection with the program. Algorithms are to be converted into program by using some programming language. तो कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है of your choice. You can select C also, you can select Java also, you can select Python. But using that language, you have to convert this algorithm into program. तो जब algorithm लिखते हैं तब क्या पिक्चर में नहीं है, what is not in the brain? The language in which you are going to implement it. Implementation का कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो रिस्पेक्टिव प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गेटिंग? तो एट द टाइम ऑफ एल्गोरिथम वी आर जस्ट राइटिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि ये मेरा प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन है, मैं स्टेप्स लिखूंगा. अब जब वो प्रॉब्लम मुझे कंप्यूटर से करवा के लेना है तो मुझे ये एल्गोरिथम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम. एंड फिर प्रोग्राम मैं किसको फीड करूंगा, मशीन को, दैट इज कंप्यूटर, एंड देन कंप्यूटर विल रन दैट प्रोग्राम. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर. तो डेफिनेशन हम क्विकली देखते हैं, सिस्टमेटिक डेफिनेशन भी बताता हूं. बट दिस वर्ड एल्गोरिथम हैज कम फ्रॉम, as I said, the word algorithm come from the name of a Persian mathematician. Persia and all, Uzbekistan and all. Have you heard about it? सुना है? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वगैरह ऐसे था एक स्टोरी, रिमेंबर? नो? बगदाद एंड ऑल. बगदाद ऐसे एक सिटी बगदाद इन वन उज्बेकिस्तान. नो, यू हैवंट हर्ड? पहले एक मैं हमारे टाइम, हमारे जमाने में वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो एक है ना उनके सेक्रेटरी, राइट? उनके सेक्रेटरी कौन है? नो? भिड़े मास्टर. क्लियर? तो वैसे आई एम ऑल्सो सेम, राइट और हमारे जमाने में. क्लियर? तो ऑब्वियसली ना देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड मी मोर देन 26 years,
right? Hardly you, I guess you all are not more than 19 also, no? 18, 19 years के रहेंगे. And I started 26 years back teaching, right or no? तो 92 में तो मैंने 10th पास आउट किया था. तब तुम लोग तो ये धरती पे भी नहीं रहेंगे. क्लियर? मुझे हमारे मराठी में बोलते हैं या भूत अलावर तुम्ही आले पण नसाल. लाइक गेटिंग. तो कहना क्या है कि हमारे समय, ऐसे हमारे समय, दैट वे. क्लियर? तो इन शॉर्ट दिस इज द वर्ड. तो हमारे समय वो एक सीरियल आती थी, वो मुंगेरी लाल की. क्लियर? तो उसमें वो एक था, वो एक बगदाद, सिटी बगदाद एंड ऑल. ठीक है. तो द वर्ड एल्गोरिथम इज फ्रॉम दिस पर्शियन मैथमेटिशियन अबू जाफर मोहम्मद इब्न मुसा अल ख्वाज़मी. तो दैट इज अल ख्वाज़मी. दैट वर्ड अल ख्वाज़मी, दैट गॉट, उसका प्रोनाउंसिएशन बदलते बदलते वो क्या बन गया? अल्गोरिथम. लाइक गेटिंग. बट व्हाट ही सेज दैट कि कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको क्या चाहिए? सोल्यूशन. तो सिस्टमेटिक क्या लिखो? स्टेप्स. एंड वो स्टेप्स जब आप क्या करोगे? फॉलो, आपके प्रॉब्लम का क्या मिलने वाला है? सोल्यूशन. गेटिंग क्लियर? सी, ही इज दैट पर्सन. ओके. And what this algorithm is, so it refers to a method that can be used by a computer for solution of a problem. तो कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या फॉलो करो? एल्गोरिथम. राइट? तो हर चीज के क्या रहेंगे? एल्गोरिथम्स रहेंगे. एवरी प्रॉब्लम विल हैव अ सॉल्यूशन, and that every solution will have what? Systematic steps. एंड सिस्टमेटिक स्टेप्स रहेंगे तो मीनिंग क्या रहेगा? एल्गोरिथम रहने ही वाला है. ठीक है. मैं अभी इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं. व्हाट इज एल्गोरिथम? तो इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अभी फिलहाल वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग इंग्लिश में देने वाले हैं कि भाई स्टार्ट करो अभी एल्गोरिथम, फिर ये रीड करो, फिर नेक्स्ट ये रीड करो, फिर इसको इसके अंदर ऐड करो एंड यहां जाके स्टोर करो, फिर ये रिजल्ट प्रिंट करो, फिर एल्गोरिथम स्टॉप करो. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश. गेटिंग? इट इज नोवेयर हैविंग एनी कनेक्शन विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट जो स्टेप्स अभी हम इंग्लिश में लिखने वाला है वो बाद में आप किस में कन्वर्ट करोगे? प्रोग्राम में. गेटिंग? एंड प्रोग्राम में कन्वर्ट करते समय रिस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या यूज करने पड़ेंगे? इंस्ट्रक्शंस. गेटिंग? जैसे पाइथन में लिखेंगे एंड सी में लिखेंगे एंड जावा में लिखेंगे तो तीनों के इंस्ट्रक्शंस क्या नहीं है? सेम. गेटिंग? पाइथन में आउटपुट करते समय प्रिंट लिखना पड़ता है, तो सी में प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, तो वही जावा में सिस्टम डॉट आउट लिखना पड़ता है. वही जावा स्क्रिप्ट रहेगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है. गेटिंग क्लियर? तो इन शॉर्ट कहना क्या है कि हर एक लैंग्वेज का क्या अलग रहेगा? इंस्ट्रक्शन अलग रहेगा. बट सेम प्रॉब्लम हम किस में सॉल्व कर सकते हैं? सी में भी सॉल्व कर सकते हैं, पाइथन में भी सॉल्व कर सकते हैं, जावा में भी. गेटिंग? तो what the definition is? So as I said, it is a finite sequence of instructions which, if followed, gives the desired result for your problem. Getting? तो आपके प्रॉब्लम को क्या मिलेगा? I hope this is okay. So it will give you the result to the desired problem. So an algorithm is a finite sequence of instruction which, if followed, accomplishes a particular task. Getting? तो वो टास्क एकदम सिंपल टास्क क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इट कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक फाइंडिंग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स. जीसीडी पता है ना? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो जीसीडी ढूंढने का हो सकता है. इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस. It can be a problem of calculating salary of an employee. It can be a problem of calculating CGPA या तुम्हारा जो पॉइंटर कैलकुलेट करना है वो प्रॉब्लम हो सकता है. Can the problem be anything? Getting? तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ क्या लिखेंगे? स्टेप्स. एंड वो स्टेप जब फॉलो करोगे आपको क्या मिलेगा? डिजायर्ड रिजल्ट. गेटिंग?
तो देखो, it is a method that can be used by a computer for solution of a user requirement. तो यूजर का रिक्वायरमेंट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यूजर का रिक्वायरमेंट है फाइंडिंग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, यूजर का रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटिंग ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं एंड मार्क्स से ग्रेड कैलकुलेट करना है. तो प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, गेटिंग, प्रॉब्लम और टास्क कैन बी एनीथिंग. तो किसी भी टास्क का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करो, ऐसे फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ क्या लिखो, स्टेप्स, एंड फिर वो स्टेप किसको फॉलो करने के लिए कहोगे, ऑब्वियसली कंप्यूटर, बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट फील्ड ना, हम लोग ऑब्वियसली फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर है, तो ये किसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, कंप्यूटर. एंड व्हेन द कंप्यूटर फॉलोज दोज इंस्ट्रक्शन इट विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट. लाइक गेटिंग, ओके. नेक्स्ट मुझे क्या बताना है, तो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू गाइज, नो इश्यूज. Next is characteristics of algorithm. Okay, every algorithm should follow some characteristic. वो उसके qualities होता है, means we call it as the characteristic or good qualities. And when the algorithm follow these characteristic, we say it is a good algorithm. Getting? अभी जरूरी नहीं कि जो कैरेक्टरिस्टिक अल्गोरिथम फॉलो करता है वो प्रोग्राम भी फॉलो करेगा. चांसेस है कि इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं भी फॉलो करे, प्रोग्राम. इट इज नॉट नेसेसरी. प्रोग्राम इज जस्ट द कन्वर्जन ऑफ व्हाट टू व्हाट, एल्गोरिथम. गेटिंग, एल्गोरिथम टू रियल रनिंग इंस्ट्रक्शंस. लाइक गेटिंग. तो इन शॉर्ट क्या बताना है कि सारे एल्गोरिथम्स के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक. तो व्हाट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, दैट फर्स्ट आई विल टेल यू. सबसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इनपुट. Okay, every algorithm should take 0 or more external input. Getting? Means हर एक algorithm, जो भी algorithm आप बनाओगे उसने क्या लेना ही है, इनपुट लेना है. बट मैंने बताया 0 और more. तो कभी algorithm को 0 इनपुट है तो इस केस में क्या होगा, तो इट इज इंटरनली टेकिंग. इंटरनली मीनिंग कोई और एल्गोरिथम का आउटपुट ऑटोमेटिक इसको दे दिया. मीनिंग ऐसे चांसेस है कि एल्गोरिथम का कैस्केडिंग होता है. कैस्केडिंग मीन समझ में है ना, ज्वाइनिंग. कि एक एल्गोरिथम है और उसका कुछ रिजल्ट किसको एज अ इनपुट जा रहा है दूसरे किसी एल्गोरिथम के लिए. गेटिंग? तब फिर उस समय वो एल्गोरिथम का इनपुट कितना हो गया, 0, क्योंकि एक्सटर्नली नहीं दिया, वो इंटरनली ही किसी और से आ गया. लाइक गेटिंग. तो इट कैन हैपन. फोर्थ ईयर तक आप ऐसे कितने सारे प्रोग्राम्स सॉल्व करोगे, कितने सारे प्रोग्राम्स डेवलप करोगे, कितने सारे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, यहां हम लोग एक्सटर्नल इनपुट नहीं दे रहे, कहीं से इनडायरेक्टली उसको क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है. लाइक गेटिंग. तो एवरी एल्गोरिथम शुड टेक 0 और मोर एक्सटर्नल इनपुट. If it is 0, then in that case the algorithm is provided input somewhere internally. Internally means समझ में आया ना, कि किसी एक एल्गोरिथम का आउटपुट ऑटोमेटिक एज अ इनपुट किसको दे दिया है, किसी और एल्गोरिथम को. गेटिंग? देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं एंड देन वी विल रीड इट ऑन द स्लाइड. लाइक क्लियर? सेकंड इज आउटपुट. Every algorithm should generate one or more output. One, यहां मैंने 0 नहीं बोला, 1 और more. तो हर एक एल्गोरिथम ने क्या प्रोड्यूस करना ही है, आउटपुट. एंड कम से कम कितना आउटपुट, 1 और मोर. अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज ना. एल्गोरिथम आपने बनाया है और वो क्या प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, रिजल्ट. इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. तो वेस्ट है ना. क्यों बनाने का ऐसा एल्गोरिथम जो क्या प्रोड्यूस ही नहीं करता है, आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस. तो हर एक एल्गोरिथम ने क्या जनरेट करना ही है, आउटपुट. एंड कितना आउटपुट, 1 और मोर. कम से कम एक आउटपुट तो आना ही है. गेटिंग क्लियर? देन दैट आउटपुट कैन बी इन द डिस्प्लेड फॉर्म. कभी कभी आउटपुट मॉनिटर पे आ रहा है, कभी कभी आउटपुट कहीं तो जाके सेव हो रहा है इन अ फाइल. गेटिंग? कहीं कहीं आउटपुट
हार्डवेयर को इंटरफेस किया रहता है, तो कोई बल्ब ग्लो हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रहा है, गेटिंग, उस फॉर्म में भी आउटपुट आ सकता है, गेटिंग। तो आउटपुट कैन बी इन विच फॉर्म, एनीथिंग, बट कम से कम क्या आना ही है, एक तो भी आउटपुट, गेटिंग। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ लेते हैं। इनपुट, zero or more quantities are externally supplied. If there are zero external input, then the input will be taken internally. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? What I mean to say कि इनपुट कितना होना चाहिए, जीरो और मोर, बट अगर जीरो है तो फिर इंटरनली कहीं से दिया है। लाइक जैसे मैंने कहा कि एल्गोरिथम कैस्केड हुआ है, एक प्रॉब्लम का आउटपुट ये दूसरे प्रॉब्लम को इनपुट है, कैन हैपन लाइक दैट, गेटिंग। आउटपुट के बारे में क्या बताया कि एवरी एल्गोरिथम शुड जनरेट वन और मोर आउटपुट, एंड होना ही चाहिए, नहीं तो अगर आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ डिजाइनिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिजाइन करके क्या फायदा है कि जब क्या प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं होता है, गेटिंग। देन वी हैव द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज डिफाइनाइटनेस। ये कैरेक्टरिस्टिक जरा क्लियर करो प्रॉपरली। अभी ये यहां भी ये बताना है कि नेसेसरी नहीं कि आपका जो प्रोग्राम रहेगा, when you'll convert the algorithm to program using some programming language, तो not necessary your program has to follow all this. इनका कहना है कि जब algorithm लिखते हो तो ये characteristics क्या होने चाहिए, follow होने चाहिए, getting? Now definiteness means what? तो they say you have to write the instructions of your algorithm, आपके algorithm के instructions ऐसे लिखो कि it should be clear and unambiguous, getting? आप कहोगे unambiguous means what? ambiguous ऐसा वर्ड कभी सुना इंग्लिश में? ambiguous meaning, ambiguous, we say na this sentence is very ambiguous, like, तो ambiguous meaning confusion, getting? या ऐसे कह सकते हैं कि ambiguous means ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन में समझ में, उसका एक से ज्यादा मीनिंग बन रहा है, मींस उसी स्टेटमेंट का ये मीनिंग भी बन रहा है, वो मीनिंग भी, मैंने एक से ज्यादा क्या निकल के आ रहा है, उसके मीनिंग्स निकल के आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस सेंटेंस है, गेटिंग क्लियर? तो आप लोग भी जब एल्गोरिथम लिखोगे तो आपके एल्गोरिथम में जो भी इंग्लिश में आपने स्टेटमेंट्स लिखे है कि स्टार्ट, फिर रीड दिस, देन ऐड दिस, स्टोर हियर, प्रिंट, ऐसे इंग्लिश में जो भी एल्गोरिथम लिखा है वो इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसे लिखो कि वो क्या होने चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, गेटिंग? अनएम्बिगुअस एकदम सिंपल एग्जांपल में देता हूं, मम्मी मेड राम अ पिज्जा, मम्मी मेड राम अ पिज्जा, तो अभी मम्मी ने राम को खाने के लिए पिज्जा बनाया या राम का ही पिज्जा बनाया, गेटिंग? हाउ यू इंटरप्रीट इट, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने राम का फैशन शो था, लाइक, या क्या कहते हैं, लाइक फैंसी ड्रेस, तो इसको पिज्जा बना के भेज दिया घर में, मैं स्कूल में, या उसको खाने के लिए एक पिज्जा बनाया, हाउ यू इंटरप्रीट इट? मम्मी मेड राम अ पिज्जा, या इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, सोचो जरा ये सेंटेंस, इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो अभी ये सेंटेंस में भी मैं स्ट्रेस कहां देता हूं, देखो उसके ऊपर है। मैंने अगर स्ट्रेस ऐसे दिया, इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, या मैं ऐसे लिखता हूं, इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, इज इट एम्बिगुअस? यस, मीनिंग कि बुक है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, सिलेक्टेड है, या बुक्स ही सिलेक्टेड है और उसमें इंफॉर्मेशन है, सोचा या नहीं? क्लियर? इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड इन बुक्स सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, मैं स्ट्रेस कहां देता हूं उसके ऊपर है, तो इज द सेंटेंस एम्बिगुअस? यस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस किस में आने का चांसेस है, इंग्लिश में, तो एल्गोरिथम लिखते समय केयर लो कि आपके सेंटेंसेस क्या होने चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं ना, देखो, ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड
एम्बिगियस। इसलिए उसको डिफाइनाइट क्यों कहा कि उसका रिजल्ट क्या रहना चाहिए, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट नहीं। डिफाइनाइट में समझ में आया ना, फिक्स आंसर आना चाहिए, गेटिंग। बट ये नेसेसरी नहीं है प्रोग्राम में। इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग, योर प्रोग्राम नॉट नेसेसरी गिव यू डिफाइनाइट रिजल्ट, इट मे गिव यू इनडिफाइनाइट। बट फिर उसमें आप लोग फिर खुद उसका एरर ट्रैप करोगे एंड फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग करके आपका प्रोग्राम और अच्छा बनाओगे, दैट इज डिफरेंट केस। ये देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, एड phi to x or y. Is it an unambiguous sentence or ambiguous sentence? Add phi to x or y. तो आपने इधर ambiguous है, मीन्स यू आर नॉट मेकिंग इट क्लियर कि भाई phi किस में ऐड करना है, x में ऐड करना है या y। गेटिंग? हाँ, अगर आपने ऐसा कंडीशन दिया रहता था कि ये कंडीशन ट्रू है तो x में कर, नहीं तो y में कर, you are giving a condition कि if this is the condition and अगर ये condition true है तो x में कर, नहीं तो y में कर, तो now it is clear। बट यहाँ आपने कुछ बताया नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मन करे उसमें ऐड कर, भाई तू x में ऐड करना है तो कर, y में कर, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे सेंटेंसेस किस में नहीं आने चाहिए, अल्गोरिथम्स में। गेटिंग? एंड ये सेंटेंस भी देखो, डिवाइड 5 by 0, बताओ मैथमेटिक्स में एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, दैट इज इनडिफाइनाइट है। गेटिंग? तो ऐसे सेंटेंसेस भी नहीं आने चाहिए। बट अभी कहोगे प्रोग्राम में अगर आ गए, तो जब प्रोग्राम लिखोगे एंड मैं इनपुट यूजर से लेने वाला हूं, मैं ए लिया, बी लिया एंड फिर ए को बी से डिवाइड करने वाला हूं, एंड देते समय अगर यूजर ने बी 0 दे दिया तो मैं क्या करूंगा, तो उस समय प्रोग्रामर ने वो हैंडल करना है केयरफुली। गेटिंग? तो वो रोबस्ट कोडिंग लिखने का काम प्रोग्रामर का है। गेटिंग? तो नेसेसरी नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम के है वो कौन फॉलो करेगा ही, प्रोग्राम। गेटिंग? बट एल्गोरिथम का ये कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जांपल समझ में है कि दिस सेंटेंस इज नॉट क्लियर, ये देखो ये इनडिफाइनाइट रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस किस में नहीं आने चाहिए, एल्गोरिथम में। ठीक है? फिर आता है फाइनाइटनेस। अभी कहोगे फाइनाइटनेस मींस व्हाट? तो दे से दैट whatever algorithm you have written, if you trace it, आप लोग खुद पेंसिल से ट्रेस कर रहे हैं कि भाई पहला ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये डिसीजन लिया उसने, फिर ये वापस से रिपीट करने के लिए वापस ऊपर आ गया। तो each and every statement of your algorithm, when you trace it, after some finite amount of time it should stop. Getting? Meaning आपका अल्गोरिथम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। एंड अगर वो नहीं रुक रहा है, मीनिंग इट हैज गॉन इनटू इनफाइनाइट एक्टिविटी। गेटिंग? तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। बट अगेन ये अपवाद है, अपवाद में समझ में आया ना, एक्सेप्शन है इन केस ऑफ प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम्स ऐसे हो सकता है जो किसमें चले गए, इनफाइनाइट एक्टिविटी में। बेस्ट एग्जांपल में देता हूं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम, समथिंग अबाउट ओएस। जैसे हमने अपना लैपटॉप खरीदा है तो उस पर विंडोज डाल दिया है, तो हम बोलते हैं ना विंडोज, मेरे मशीन पे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सेलफोन लेते हो तो बड़े लोग आईफोन लेते हैं, मेरे पास नहीं है, क्लियर? तो दे टेक आईफोन, तो आईफोन का भी तो ओएस है ना, इज इट हैविंग इट्स एप्पल ओएस है? ओके, जो एंड्रॉइड वाले लेते हैं उसमें एंड्रॉइड ओएस होता है, राइट और नो, क्लियर? तो फोन्स पे भी ओएस है, लैपटॉप्स पे भी ओएस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्या होता है, प्रोग्राम। इज ओएस इटसेल्फ आल्सो वन प्रोग्राम? यस। एंड वो ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग के समय मेमोरी में आ जाता है। बूटिंग नहीं समझ में आया ना, जब कंप्यूटर आप क्या करते हो, स्टार्ट, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद वो ओएस डिस्क में से किस में आ जाता है, मेमोरी में। एंड एक बार मेमोरी में आ गया तो वो आपके सर्विस देने के लिए रेडी है। मीन्स ओएस क्या बोल रहा है, बोल मेरे आका क्या हुक्म है। गेटिंग? मीनिंग इट इज एट योर सर्विस, क्योंकि ओएस का काम ही वो है सर्विसेज देना, किसको, हमें, यूजर्स को। गेटिंग? तो वो कंटिन्यूअस दे रहा है। इज इट सेइंग दैट नहीं अभी मैं 10 सर्विसेज के बाद मैं थोड़ा आराम करने वाला हूं? डज इट डू लाइक दैट? नो।
गेटिंग? तो इट इज कंटिन्यूअसली एट योर सर्विस। एक बार बूटिंग के समय आ गया मेमोरी में, एक बार आ गया, अभी वो रेडी है क्या करने के लिए? आपको सर्विस देने के लिए। You ask for the service, it gives you the service. Again, it is waiting for next request. आ गया, सर्विस देते जाएगा. But is it doing it indefinitely? जब तक आप मशीन बंद नहीं कर रहे हैं, मीन्स जब तक पावर ऑफ नहीं कर रहा है, तब तक OS इनडिफाइनाइट चल रहा है क्या? यस। तो इसीलिए वही बताना है कि अल्गोरिथम कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? इनडिफाइनाइट, बट प्रोग्राम में। गेटिंग? तो नॉट नेसेसरी एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम हु विल फॉलो प्रोग्राम। गेटिंग? प्रोग्राम के लिए कुछ चीजें अपवाद है। गेटिंग? तो फाइनाइटनेस में क्या याद रखना है कि इफ यू ट्रेस ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ योर एल्गोरिथम, ईच एंड एवरी पाथ, पाथ भी हो सकता है ना एल्गोरिथम में, कुछ डिसीजंस हो सकता है कि भाई मैंने ये कंडीशन चेक किया, ये है तो मैं ये करूंगा, नहीं तो ये करूं, या कुछ रिपीटेशंस कर रहा हूं कि इतना काम होने के बाद मैं वापस ऊपर आ गया, अगेन वही एक्टिविटी रिपीट कर रहा हूं। गेटिंग? तो इफ आई ट्रेस ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ माय एल्गोरिथम, इट शुड स्टॉप आफ्टर सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। कभी ना कभी तो वो क्या होना चाहिए? रुकना चाहिए। एंड अगर वो नहीं रुक रहा है तो इट इज नॉट फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी? फाइनाइटनेस प्रॉपर्टी। गेटिंग? बट प्रोग्राम का ऐसा जरूरत है कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम व्हेन यू राइट इट हैज टू स्टॉप, या कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो स्टॉप होने के लिए नहीं बने, माने वो इंडिफाइनाइट चलने के लिए ही बने हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो? या हर एक प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो वो कभी ना कभी तो स्टॉप होना चाहिए? और इट मे हैपन दैट some programs we may develop which are made to run indefinitely. Yes or no? Example just now I gave, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्या है? प्रोग्राम ही है, बट वो बनाए ही ऐसा है कि उसको कैसे रन होना है। इट हैज टू रन indefinitely. Once the computer start, it will come in the memory and it is indefinite ready for your service. मैंने बोला ना कि वो एक बार आ गया तो वो बोल मेरे आका क्या हुक्म है, हम हुक्म देंगे, वो उसके लिए सर्विस देगा, अगेन नेक्स्ट हुक्म के लिए वो वेट कर रहा है। ओएस वैसे बनाया गया है। गेटिंग? तो इन शॉर्ट व्हाट आई सेड दैट इज क्लियर, यू कैन जस्ट quickly read it. If we trace out the instructions of an algorithm, then for all cases the algorithm terminate after finite number of steps. Getting? Means कुछ ना कुछ तो टाइम के बाद आपका algorithm क्या होना ही चाहिए? Stop. Getting? जब मैं क्या ट्रेस करता हूं इंस्ट्रक्शन एंड सारे पॉसिबिलिटीज भी, चांसेस है ना कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है स्क्वायर रूट, सॉरी रूट्स निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? गेटिंग? आई टीच प्रोग्रामिंग बट आई लव मैथमेटिक्स। क्लियर? प्रोग्रामिंग में पेट पेट पानी के लिए, लाइक गेटिंग, पैसा भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। बट कुछ पैशन होता है ना, कुछ लोगों का अलग अलग पैशन होता है ना, कुछ लोगों का ड्राइविंग का पैशन होता है, स्विमिंग का होता है, वैसे मुझे आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ व्हाट? मैथमेटिक्स। मैं बहुत सारे स्पेयर टाइम में पजल सॉल्व करते रहता हूँ, बहुत सारे वैदिक मैथ्स के बुक्स पढ़ते रहता हूँ, बट आई डिडंट नेवर स्टार्ट अ क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स का ऐसा कुछ क्लास नहीं शुरू किया। गेटिंग क्लियर? तो नेवर, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम मेड फॉर प्रोग्रामिंग। दैट इज लव अलग होता है, और क्या कहते हैं, हाँ क्लियर, तो शी गॉट इट लाइक। तो एनीवेज कहना क्या है कि आप लोगों ने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, तो उसके रूट्स निकालते थे, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी रहता था, याद है? हम लोग रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता था, -b ± √(b² - 4ac) / 2a, याद है? तो वो जो रूट के अंदर हम लिखते हैं ना b² - 4ac, उसके 3 पॉसिबिलिटी रहते थे कि वो वैल्यू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। नो,
क्वेश्चन मार्क आया उसके फेस पे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आते थे ना, ए प्लस बी जे या ए माइनस बी जे, तो वो एक केस था। पॉजिटिव भी आ सकता था एंड जीरो भी आ सकता था। तो मैंने अगर एक अल्गोरिथम लिखा है किसके लिए, फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे सारे पॉसिबिलिटी देखने पड़ेंगे ना, कि जीरो वाला पॉसिबिलिटी, ग्रेटर देन जीरो वाला, लेस देन जीरो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज में मेरा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। गेटिंग? बट जैसे मैंने कहा, ओएस इज एक्सेप्शनल। ओएस एक ऐसा प्रोग्राम है जो बनाया ही है किसके लिए, टू रन इनडिफाइनाइटली। गेटिंग? ओएस कभी भी खुद नहीं स्टॉप हो सकता है अनलेस एंड अनटिल यू शट डाउन द मशीन। जब आप मशीन शट डाउन करेंगे तभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, स्टॉप। दैट इज द रूल। लाइक गेटिंग? तो दैट इज क्लियर। अभी जो कंप्यूटर्स वाले लोग हैं, यू विल हैव अ कंप्लीट पेपर ओनली। फोर्थ ईयर में तो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन का एक इलेक्टिव पेपर ही है, ओएस डिजाइन का। गेटिंग? तो फिर उसमें आप लोग यूनिक्स का पूरा डिजाइन पढ़ोगे। आई हैव लर्नड कंप्लीट यूनिक्स डिजाइन, लाइक करेक्ट। एंड फिर वो पूरे यूनिक्स डिजाइन को पढ़ के फिर एक मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, एक रॉबर्ट लव का बुक पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने एक 10,000 लाइंस का कोड यूनिक्स का दिया है। मैंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा 10, एंड इफ यू स्टडी इट देन यू विल रियलाइज द पावर ऑफ सी। सी प्रोग्रामिंग कितना पावरफुल है, कि कैसे मोर देन 50 इयर्स इट इज सस्टेनेबल। अभी भी वो क्यों मार्केट में है, मोर देन 50 इयर्स। अराउंड 73 में वो लैंग्वेज आया, क्लियर? 73, तो अभी 24 है, तो इट इज मोर देन 50 इयर्स, एंड फिर भी वो अभी भी मार्केट में है, एंड वो आगे भी और कितने साल तक जाने वाला नहीं है। गेटिंग? एनीवेज, तो दिस point is also clear, and last will come to effectiveness. Getting? अभी जरूरी नहीं अगेन प्रोग्राम्स भी ये फॉलो करे। ओके? इफेक्टिवनेस का कहना क्या है, कि आप लोग अल्गोरिथम जब लिखते हो तो इंस्ट्रक्शंस इतने बेसिक लिखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बट प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते समय कर सकता है उसको कॉम्प्लिकेटेड। गेटिंग? बट इनका कहना है अल्गोरिथम्स लिखते समय इंस्ट्रक्शंस इतने बेसिक लिखो कि उन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम खुद पेपर पेंसिल से सॉल्व करने गए तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। गेटिंग? मींस जैसे अगर मैंने कहा कि डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 by 3 फटाफट कर दोगे, क्लियर, जम जाएगा। बट जब वो मैट्रिक्स का साइज बढ़ते गया, मैंने कहा अगर 4 by 4 है, 5 by 5, नो ना, नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है 11th-12th में हम लोगों ने कभी किसके ऑर्डर पे गए ही नहीं, 3 by 3 के ऊपर गए ही नहीं ना। गए ऐसे 4 by 4 का डिटर्मिनेंट निकालो, 5 by 5 का डिटर्मिनेंट। बट ये तुम्हें तब पता चलेगा कि वो 5 by 5 एंड 100 by 100 मैट्रिक्स भी जरूरत पड़ती है जब तुम लोग इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑल करोगे। अभी कुछ लोग जो एआई वगैरह में जाने वाले हैं, तुम लोग एआई के नहीं है ना, प्योर कंप्यूटर्स की है। कुछ लोग है ना एआई and data science and all, you have such subjects. There you'll realize that you have to do processing on more than 100 size matrix. 100 by 100 size के भी ऊपर के मैट्रिक्स के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग। विल इट बी इफेक्टिव? मैंने पेपर पेंसिल से कर पाएंगे? इम्पॉसिबल ना। नो, बट कैन योर कंप्यूटर डू इट? कंप्यूटर तो स्लेव है, बोलता है कि इट सेज दैट कि मुझे मेथड बताओ, I am your slave, you just tell me the method, I'll follow that method. Getting on? तो इफेक्टिवनेस का कहना क्या है, कि आप लोग अल्गोरिथम लिखते समय इंस्ट्रक्शन इतने बेसिक लिखो कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को आप खुद पेपर पेंसिल से सॉल्व करने गए तो भी क्या करने आना चाहिए। मींस मैंने अगर कुछ सैंपल इनपुट दिया, मैंने अल्गोरिथम लिखा, मैंने कुछ सैंपल इनपुट दिया, तो वो सैंपल इनपुट पे मैं ईच एंड एवरी स्टेप क्या कर सकना चाहिए। I should be able to do it on my own. Like getting? मींस जैसे अगर मैंने 5 नंबर्स दिए एंड बोला है कि ये एक सॉर्टिंग की टेक्निक है, सॉर्ट करने की टेक्निक है, तो ये टेक्निक ये 5 नंबर्स पे अप्लाई करो, कर पाओगे। ठीक है, थोड़े ही नंबर्स है, टेक्निक पता है आपको कि कैसे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग की टेक्निक सिखा दी है। अभी मैंने कहा कि ये सॉर्टिंग टेक्निक ये 5 नंबर्स पे अप्लाई करो, ओके, यू विल डू इट। But if your numbers go on increasing,
अभी मैंने कहा कि हमारे 1000 नंबर्स है और इसको सॉर्ट करना है, 2000 नंबर्स है इसको सॉर्ट करना है, 1 लाख नंबर्स है इसको सॉर्ट करना है, तो खुद पेपर पेंसिल तो से नहीं कर पाओगे, लाइक गेटिंग। तो कहना क्या है, ये क्लियर है कि एल्गोरिथम लिखते समय इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखो कि वो इतने बेसिक होने चाहिए कि यू ऑल्सो शुड बी एबल टू सॉल्व इट बाय पेपर एंड पेंसिल, लाइक गेटिंग। एग्जाम्पल देखो, अगर दो होल नंबर्स को ऐड करना है, कैन यू डू इट क्विकली? जम जाएगा। बट बहुत बड़ा रिकरिंग नंबर है, getting 7.2333 something and 3.2 something, ऐसा बड़ा रिकरिंग, एंड उसको ऐड करने के लिए तो इतना इफेक्टिव नहीं, इतना जल्दी हो नहीं सकेगा, गेटिंग। हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस, लाइक एक्सेप्शन, ह्यूमंस में भी एक्सेप्शंस है जिन्होंने कंप्यूटर को भी हराया। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट शकुंतला देवी। शकुंतला देवी यू माइट हैव हर्ड, हैव यू रेड बुक्स ऑन शकुंतला देवी की? कभी बुक्स पढ़े हैं? नहीं, उनका मूवी देखा? एक मूवी तो निकला था ना, विद्या बालन ने वो रोल प्ले किया था। नो, यू डोंट रिमेम्बर? उसके मैथ्स स्किल्स का यूज उसके फादर उसका फायदा करते थे। उसका मैथ्स स्किल इतना अच्छा था, तो वो ऐसे पार्टीज में वगैरह जाके वो मैथ्स के स्किल्स बताती थी, तो लोग दे यूज टू बी वेरी हैप्पी एंड देन गिव मनी। तो उसके फादर ने वो उसका फायदा लिया, एंड वो सब जगह पे लेके जाते थे एंड ऐसे पैसा कमाते थे, लाइक गेटिंग। तो दैट वाज, वो पूरा एक स्टोरी है, कभी पढ़ो। शकुंतला देवी का एक छोटा सा पजल बुक भी है, कभी करो, लाइक दोज हु वांट टू डू फर्दर, मैंने से बी नहीं करना है आपको, बी करके आगे जाके एमबीए वगैरह करना है, तो आपको कैट एंड उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो बुक बहुत यूज होता है, लाइक गेटिंग। बहुत अच्छे अच्छे पजल्स है उसमें, गेटिंग। एनीवेज, तो शी वाज अ एक्सेप्शन ना, उसने तो वो रूट निकाल दिया, और वो रूट निकालने के पहले वो कंप्यूटर अभी निकल रहा है उसके पहले इसका आंसर निकल गया, तो वो एक्सेप्शन है। बट एक कॉमन लोगों के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखने चाहिए कि इट शुड बी इफेक्टिव, वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट बाय पेपर एंड पेंसिल, ठीक है। तो आई होप दिस ऑल 5 पॉइंट्स। देखो, एडिंग टू इंटीजर्स, दैट इज टू होल नंबर्स, इज इफेक्टिव ऑपरेशन, but adding two real numbers with infinite long decimal is not effective. मुझे जस्ट बताना था इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। जैसे एडिंग और मल्टीप्लाइंग 3 by 3 मैट्रिक्स 2, यू कैन डू इट क्विकली, बट व्हेन द ऑर्डर गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो इनइफेक्टिव है। बट कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि उसको एक बार मेथड बता दिया है, मेथड बता दिया है, तो कंप्यूटर क्या बोलता है, साइज बढ़ते गया तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने एक बार मेथड बताया ना, वो मेथड में 5 by 5 रहने दो, 100 by 100, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। ह्यूमंस कैन नॉट, बट द कंप्यूटर विल, लाइक गेटिंग। ओके, तो आई होप क्लियर है। फिर थोड़े से एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स वी विल सॉल्व। जस्ट मुझे ना एक मार्कर देखना है, पेन है कि नहीं इधर। Okay, anyways, I'll list out few. We will solve it, don't worry. थोड़े से एक 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ये हम लोग अल्गोरिथम्स लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो फॉर टुडे वी विल कीप इट हियर ओनली। टुमारो व्हाट विल डू इज वी विल सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये थोड़े एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे, थोड़े मैं तुम्हें और भी देता हूं इसके अलावा अल्गोरिथम्स लिखने के लिए। देन वी विल मूव टू फ्लो चार्ट्स। फिर फ्लो चार्ट्स क्या होता है, फ्लो चार्ट के नोटेशंस क्या है, गेटिंग। एंड फिर थोड़े फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ओके। देन वी विल मूव ऑन टू सी प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, तो कल थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, आज अभी फर्स्ट डे है इसलिए मैंने आई एम टेकिंग 1 hour ओनली। टुमारो वी विल बी गोइंग विथ 1.5 hour। बी रेडी, एंड लॉट एक्साइटिंग थिंग्स है, डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे चीजें ये सी में सीखोगे, बहुत सारा आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने जब जाओगे तब श्योर यू विल थैंक मी कि यस हमारा ये बेसिक्स अच्छा है, इसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इन्फॉर्म योर मोर फ्रेंड्स ऑल्सो, और भी जो फ्रेंड्स रहेंगे, तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर है, इतना कुछ मिस नहीं हुआ है, तो इन्फॉर्म, जितने भी ज़्यादा लोग रहेंगे
अच्छा रहता है ना, क्लास में ज़्यादा रहेंगे तो सीखने के लिए भी मज़ा आता है, राइट? सिखाने वाले को भी मज़ा आता है, लाइक, ठीक है। एनीवेज, तो फॉर टुडे वी विल पॉज हियर ओनली। ये सॉल्व भी करेंगे हम कल। मैं आपको थोड़े प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके दूंगा, थोड़े आपको करने के लिए बोलने वाला हूँ। ठीक है, टुमारो विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑल्सो।